Hello and welcome to ProInCS. How you all are doing? I'm also doing great. इस बार लास्ट पार्ट लिया था हमने गवर्नेंस के टेस्ट का और स्टूडेंट्स के सरप्राइजेस तो देखते ही बनते थे. क्या पेपर सर और क्या सरप्राइजेस. ठीक है, चलो पेपर देखते हैं किस तरीके से पेपर हुआ था. पहला क्वेश्चन रिस्क मैनेजमेंट के चैप्टर का था. 20 मार्क्स का पहला क्वेश्चन जिसने स्टूडेंट्स को लिटरली इस बात में सरप्राइज कर दिया कि सर इतना बड़ा क्वेश्चन कभी आ सकता है, हमसे ऐसे भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है. वेल, क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ जाएगा. क्वेश्चन ऐसा था कि यू हैव बीन recently appointed as a chief risk officer, okay, of a company which is in steel and casting business, and name of the company is ABC Electro Steel Listing, short में ABC समझो. You have been told that ABC is a fully committed to strength in its risk management capability, okay, on a continuous basis in order to protect and enhance the shareholders' value. You have been told that the risk management framework ensures compliances with the requirements of amended listing agreements as per SEBI LODR regulations. Okay, तो ये भी याद रखना, the risk management is in compliance with the listing agreements. Okay, ये part भी समझने लायक था. And the framework establishes a risk management processes across all the businesses and functions of the company. ठीक है, these processes are periodically reviewed to ensure that the management controls risk through properly defined framework. ठीक है, fine. You are also made aware that the company has already undertaken an extensive risk management effort that includes introducing of risk management manual, complying of a comprehensive profile of the key risk of the company, identifying the key gaps in the managing of those risks, and developing preliminary action plans to address those risks. Now, this effort accomplished following goals. So, क्या क्या goals इसमें से मिले? To respond to the board's need of enhanced risk information and improved mitigation, then to provide the ability to prioritize, manage, monitor the risk in the business, to formalize explicit requirements for assessing the risk on the ongoing basis, including effective internal control and management reporting systems. And you also given the information that the company uses raw materials to manufacture the steel castings. It is faced with the threat or pressures on the margins of the sale. And to counter that threat, the company has taken various steps, which includes, important point is backward integration. Oh, पीछे की तरफ जाने वाला. That is what things can be improved from the backside. So backward integration, which comprises coal mines and iron mines and brownfield expansions. ठीक है. So they are adjusting from the steel business to core, that is sources की तरफ से, जहाँ से steel के correlation है, something like coal iron mines की तरफ. That is, for example, sinter plant, sponge iron plant, coke over plant, then power plant from the waste head recovery. Okay, that kind of integration that they have taken. It also set up research and development for the expansion of its manufacturing capabilities with a view to control the cost. Okay, so they have set up their own research and development things. Okay, now with these set of facts for your review, आगे भी कुछ है, आगे भी कुछ है. So you came to know that the company is a ISO so and so certified company, okay, and strictly adhering to the emission norms. Very good. And you are also told that the thrust given by the government of India on water and water related projects, and with the estimated growth in the water requirements, the demand of the DI pipes are expected to grow substantially, and the company is confident of retaining the market share, and labor relations have been excellent throughout the year in spite of number of unions, and it is the result of such cordial or harmonious relations that not a single mandate has been lost in the last 8 years, which is really phenomenal. It can be acting as a strength of the company, and the company believes that the labor relations will continue to remain excellent. That's a really good statement. The company has a credit insurance policy taken. Okay, matlab they have a credit related things also. And now comes the real thing. You have been asked to prepare a report to the company's management
which should contain the key risk affecting the company and the measures that can be taken to mitigate such risk. And looking at the marks, students were all throughout was like this. सर ये इतना सब में हमको क्या करना है, हमको ये बनाना है की रिस्क इफेक्टिंग एंड मेजर्स. And students, I can actually feel the classroom test that was गए अपने 20 मार्क. ये पता नहीं यार ये क्या करेंगे. कई स्टूडेंट्स सोच में ऐसे बैठे थे, ये करे वो करे, क्या करना चाहिए था. So I can actually feel that. I can actually feel the discomfort with the students had. लेकिन क्वेश्चन एक्चुअली पढ़ने के बाद बहुत ईजी था की रिस्क अफेक्टिंग फैक्टर. मैं अपनी जगह पे होता तो मैंने क्या किया, वही मैंने मॉडल आंसर्स में एनालाइज किया है कि जब मैं इस चीज़ को देखता हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए था. ठीक है, तो वही चीज़ मैंने मॉडल आंसर में एनालाइज की है. ठीक है, तो मॉडल आंसर्स में जो चीज़ें एनालाइज की गई, जो चीज़ें पुटअप की गई, वो क्या थी, कैसे करनी होगी, चलो वो सब समझते. एनालाइज जैसे किया था, व्हाट आर द वेरियस काइंड ऑफ रिस्क. मैंने एक पेपर पेंसिल से पेपर पहले लिख लिया इस क्वेश्चन का. रिस्क लाइक पॉलिटिकल रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, क्रेडिट रिस्क, गवर्नेंस रिस्क, लेबर रिस्क, एंड इसमें से जो रिस्क, गवर्नमेंट रिलेटेड रिस्क, पॉलिसी चेंजेस रिस्क, ये सारी चीज़ें जो समझ में आ रही थी, बिकॉज दैट आर द की रिस्क फैक्टर्स जो हम लोग इसको यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं. एंड मेजर्स, अगर आपको याद है तो आपने पढ़ा था रिस्क अवॉइडेंस, रिस्क मैनेजमेंट एंड रिस्क ट्रांसफर, रिस्क एक्सेप्टेंस, वो इसके मेजर बन जाते. तो आंसर वाज दैट मच. यस सर, उसी चीज़ को यहाँ पे फैक्ट्स एंड उस रिस्क के पार्ट को एनालाइज करते हुए पूरा आंसर लिखना था. बट आई मस्ट से स्टूडेंट्स कुछ लिख पाए, कुछ लोगों ने अपना आंसर क्रिएट किया, जो भी था सबको रेलिवेंटली अपने अपने मार्क्स दिए गए थे. एंड कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स थोड़े डिस्कम्फर्ट हो ही जाते हैं जब सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन आता है. लेट मी टेल यू, लाइफ हमेशा सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन ही देती है. हमेशा हम लोगों को लाइफ के अंदर ऐसे सिचुएशंस मिलते हैं, ऐसी चीज़ें समझनी होती है, उसके हिसाब से क्वेश्चंस मिलते हैं. ठीक है, चलो अब ये समझ लेते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन था और क्या क्या चीज़ें अपने को करनी चाहिए थी. ठीक है, चलो लेट्स अंडरस्टैंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. इसका आंसर को अगर हम डिस्कस करते हैं तो एक रिपोर्ट बनाने के लिए बोला था, तो लेट्स प्रिपेयर द रिपोर्ट. हम बोलेंगे रिपोर्ट टू द कंपनीज मैनेजमेंट, टू द मैनेजमेंट फ्रॉम चीफ रिस्क ऑफिसर, डेट डैश, एग्जाम की चाहिए तो डेट डाल देना, जो भी चलेगा. And key risk affecting the companies and its mitigation, that is the subject. And introduction, और इस रिपोर्ट में क्या क्या आएगा, तो इंट्रोडक्शन. रिपोर्ट covers two aspects, the key risk and the measures to be taken, and then we will start with the key risk affecting the company. पहला पार्ट हम लोग डिफाइन कर सकते हैं strategic risk. It includes the current and the prospective impact on earnings, capital, reputation, good standing of the organizations arising from the poor business decisions, improper implementation of the decision, lack of industry, economic, technological changes, failure of strategies adversely affecting. So ये कहाँ पे इस चीज़ में यूज़ होगा. ठीक है, जो फैक्ट्स कोरिलेटिंग टू दिस थिंग हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. दैट strategical risk is given facts में. The few major strategies that can be initiated by ABC reduce the threat on margins on sales. ABC has kept step backward, ना कि forward. इसका मतलब मालूम पड़ रहा है कि there is a deep margin, that is the margin of sale is getting affected. Earning थोड़ी कम आ रही है. ABC has set up अपना खुद का research and development to expand its manufacturing capability with the view of controlling cost. अच्छी बात तो है, लेकिन इसका ये भी समझ में आ रहा है कि स्ट्रैटेजिकल रिस्क है इसमें, क्योंकि वो दूसरे पे रिलाई नहीं कर पा रही. एंड द कंपनी हैज़ टेकन अ क्रेडिट इंश्योरेंस पॉलिसी. मैंने पहले हिंट दिया था. इसका मतलब ये भी है कि कंपनी को यू कैन से क्रेडिट्स में कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन्स है. तो दैट काइंड ऑफ रिस्क कैन अराइज, बट डिपेंडिंग ऑन द पॉलिसी, दैट थिंग्स दैट हैपन इन फ्यूचर. ओके, जैसे अभी पेंडेमिक का टाइम आया, सडनली मेनी काइंड ऑफ रिस्क फोरफ्रंट में आ गए थे. सो दीज आर द रिस्क विच वी कैन एनालाइज एट द फर्स्ट फेज. सेकेंडली हम बात कर सकते हैं ऑपरेशनल रिस्क की. ओके, ऑपरेशनल रिस्क कैसे यहाँ पे ऑपरेट होगा. देखो, ऑपरेशनल रिस्क पहले होता क्या वो समझा देते हैं. ऑपरेशनल रिस्क इज अ रिस्क ऑफ लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम द inadequate or failed process, peoples or systems, and from the external events. अब यहाँ पे द कंपनी इज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील कास्टिंग. Health and safety of the worker is a major issue for the management issue, in spite of the fact that labor relations has been excellent. Further, integration of the backward integration needs a continuous monitoring for smooth functioning, because देखो coal mining या
आयरन माइनिंग या स्टील की तरफ जो वो लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं, दैट्स वेरी रिस्की काइंड ऑफ बिजनेस, इट्स नॉट ईजी। तो हम ये चीज़ें बता सकते हैं कि दिस इज ऑल्सो रिस्क एरिया। सो ABC while implementing the strategy is facing a risk of failure of the strategies. So that kind of operational risk, तो strategical risk के साथ operational risk जुड़ जाता है, ठीक है। The next kind of risk जो हम यहाँ पे एनालाइज कर सकते थे वो था फाइनेंशियल रिस्क। ओके, फाइनेंशियल रिस्क कहाँ से आया? These risks are associated with the financial assets, structures, transactions of a particular industry. Okay, जैसे NASDAQ defines a financial risk as the cash flow of an issuer will not be able to meet the financial obligations. So अगर कोई इशू अपना फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन नहीं मीट कर सकता तो उसको हम लोग फाइनेंशियल रिस्क बोलते हैं। In generic term, finance risk is the possibility that the investment return will be different from the historical, जो था उसके कंपेयर में हम आज अलग कमा सकते हैं, और the expected return, and also take into account the magnitude of difference. This include the possibility of losing all or any of the original investments also. ठीक है, तो ये हम बता सकते हैं कि फाइनेंशियल रिस्क हो सकता है। देखो एग्जैक्टली गिवन फैक्ट में है नहीं, बट स्टिल वी आर डिस्क्लोजिंग बिकॉज फाइनेंस इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो हम फाइनेंशियल रिस्क के बारे में भी बता सकते हैं। द नेक्स्ट काइंड ऑफ रिस्क जो हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं वो है ऑडिट रिलेटेड रिस्क। ऑडिट रिलेटेड, यस एग्जैक्टली, ऑडिट रिस्क भी हो सकता है। ऑडिट रिस्क हैज ट्रेडिशनली बीन सीन एज स्ट्रिक्टली रिस्क ऑफ इनकरेक्ट ऑडिट कंक्लूजन्स। कभी कभी ऑडिट के कंक्लूजन्स गलत चले जाते हैं, और contemporary view however include a big picture of audit risk, and specifically internal audit function is not doing the right thing, working for the best for the organization, तो ये risk suffer होता है। In the present case मैं ये बोल सकता हूँ ABC is already facing a threat of pressure on margins. Further, with the introduction of the backward integration, it is likely to involve into a huge cost, because याद रखना the movement of forward or a backward integration आपके लिए cost होता ही होता है, there is always a cost to the capital. So it has to be devising a strategy for way forward for such kind of threats also. Clear? So ये हो जाता है audit related risk के कहीं ना कहीं internal audit या audit आपको वो margin वो चीज़ें बराबर से नहीं बता पा रहा। फिर next kind of risk हम discuss कर सकते हैं political risk. It includes political factors as fall or change in the government resulting into changes in the government policy. जैसे अभी recently US में election हुए, government change हो गई, किसी state election होते हैं government change हो जाती है। So this kind of risk is a political risk, as government can changes, the government policies changes, communal violence comes into picture, hostilities comes into picture. So present case में the thrust of the government of India on water and water related project है, जिसके वजह से ABC is getting a huge success. But if the government changes or refuses to pursue the policies, it will create a pressure on ABC unnecessarily. Clear? तो ये kind of risk भी अपने अपने पिक्चर में आ ही जाता है। Clear? सबको समझा? अभी नेक्स्ट काइंड ऑफ रिस्क हम लोग जो यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं वो है टेक्नोलॉजी रिस्क। तो टेक्नोलॉजी के बारे में क्या क्या बातें कर सकते हैं? ओके, लेट्स सी। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स इंक्लूड अनफोर्सिंग चेंजेस इन द टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन रिजल्टिंग इन टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस। प्रेजेंट केस में अगर बात करें तो द मशीन्स और द टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन विच इज एम्प्लॉयड बाय ABC कैन बिकम ऑब्सोलेट इन द फ्यूचर विद द एडवेंट ऑफ न्यू काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, ऐसा लिख सकते हो। नेक्स्ट आप लिस्ट लिख सकते हो क्रेडिट रिलेटेड रिस्क। This risk arises out of default due to inability or unwillingness of the customer or the counterparty to meet its commitment. This credit risk is a probability which is a loss from the credit transaction. It is called credit risk. ABC may face commitment problems from the customers that वो default कर दें. Okay, so that kind of risk can be there. We are just analyzing the possibility of risk. ऐसा नहीं है कि हर risk इस paragraph में हो, बट वी आर जस्ट एनालाइजिंग द पॉसिबिलिटी, क्योंकि उन्होंने बोला की रिस्क एरिया आइडेंटिफाई करो, हम वो एरिया आइडेंटिफाई करके उनको बता रहे हैं। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट काइंड ऑफ रिस्क जो हो सकता है वो है प्रोसेस रिस्क। प्रोसेस रिस्क, इट इज द इनेबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट टू मीट द प्रोसेस रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स on account of failed activities in the business process. It is the risk of resulting from the integral process, peoples and system. Okay, द बैकवर्ड इंटीग्रेशन जो ABC ने इंक्लूड किया है, जैसे कोल माइंस, आयरन माइंस की तरफ जाना या ब्राउनफील्ड एक्सपेंशंस की तरफ, दे मे फेस प्रॉब्लम्स इन द कमिंग फ्यूचर if the management has not chalk out a full proof plan to mitigate such kind of risk, they may face a problem in future. ये प्रोसेस में आ सकता है। नेक्स्ट काइंड ऑफ रिस्क हम लोग बोल सकते हैं कंप्लायंस रिलेटेड रिस्क। तो ये कंप्लायंस रिलेटेड रिस्क क्या है, कैसे हो सकता है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। ओके, compliance risk includes material financial loss or loss of reputation,
that may occur as a result of failure to comply with laws, regulations, rules related to organization, standard codes applicable. ये मेरे को हिट हो गया एक्चुअली उसके हिसाब से, दैट इज ओल्ड ISO norms के हिसाब से. So in the present case there could be a risk of LODR non-compliances. Okay, LODR non-compliances. Okay, clear? फिर next kind of risk there can be is a governance related risk. So governance risk भी हो सकता है, that is ineffectiveness, unethical management by its effective margin. तो management can suffer because of governance related risk also. तो ये भी risk अपने अपने picture में आ सकता है. अब what are the measures that can be taken for this process, अपने को वो समझना है. तो जहाँ तक measures की बात करो तो following measures can be taken. Measures like to mitigate the risk can be taken as a risk mitigation strategy is an organization plans. How will it address its identified risk? Mitigation and measurement techniques are applied according to the events and they are measured and classified according to the types of the risk. तो इस तरह से अलग अलग आंसर लिख सकते हैं. फिर आंसर में हम बताएंगे द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिस्क ट्रीटमेंट क्या होता है. टू कंटेन द रिस्क, दैट इज रिस्क को एक जगह कलेक्ट करना, टू टॉलरेट लेवल तक लेके जाना, सो दैट वी कैन हैव द एपेटाइट ऑफ एब्जॉर्बिंग द रिस्क, दैट हाउ मच रिस्क द मैनेजमेंट कैन एक्सेप्ट. और फिर ये समझाना कि हम उस रिस्क को एड्रेस कैसे कर सकते हैं. ठीक है. फिर अपने रिस्क में वही रिस्क अवॉइडेंस, रिस्क ट्रांसफर, रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क, वही सारी चीज़ें डालनी है. तो आंसर में कोई रॉकेट साइंस नहीं था, बस उसी चीज़ को समझना था. सो ब्रॉडली रिस्क रिस्पॉन्स एंड कैटेगरीज इनटू फॉलोइंग बकेट्स. तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है. ओके, सो व्हाट आर द थिंग्स यू कैन से अबाउट इट. पहले हम बोल सकते हैं रिस्क अवॉइडेंस के बारे में. ओके, पहले हम बात कर सकते हैं रिस्क अवॉइडेंस के बारे में. तो रिस्क अवॉइडेंस की जहाँ तक बात करता हूँ, रिस्क अवॉइडेंस दैट इज existing the activities which are increasing the risk of organization. For instance, in case of ABC, risk avoidance may involve the company in existing some of the activities initiated in the backward integration. मतलब हम कहना चाहते हैं देखो वो backward integration की तरफ जा रही है. इसका मतलब आगे चल के कई प्रॉब्लम्स आ सकती है और फ्यूचर में एक थ्रेट भी आ सकता है. तो उनको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि प्रोसेस रिस्क को कैसे वो मिटिगेट करें, क्योंकि ये जो चीज़ें बैकवर्ड इंटीग्रेशन की तरफ जाती है तो आपको कई नेचर में ट्रबल्स आते हैं. तो हम रिस्क अवॉइडेंस की तरफ पहला ध्यान देना चाहते हैं. दूसरा हम रिस्क बता सकते हैं, रिस्क रिड्यूस मैनेजमेंट और ट्रीट कैसे किया जाए, क्या क्या नेचर में उसको किया जाए. ओके, तो दैट बिकम्स द नेक्स्ट पार्ट टू अंडरस्टैंड. अब रिस्क रिड्यूस मैनेजमेंट ट्रीट करने के लिए आंसर में लिख सकते हैं दैट एक्शन टू टेकन टू लाइकलीहुड ऑफ द एक्शन टू रिड्यूस द रिस्क लाइकलीहुड और इम्पैक्ट और बोथ और ट्रीट इट ऑल टुगेदर. मतलब किस तरीके से या तो आप रिस्क को रिड्यूस कर सकते हो या उसको हटा सकते हो या पूरी तरह सॉल्व कर सकते हो. तो इट इन्वॉल्व्स इंटरनल कंट्रोल मेजर्स को स्ट्रॉन्ग करो, इंटरनल ऑडिट को स्ट्रॉन्ग करो, ऑथेंटिसिटी ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस बराबर करो एंड फाइनेंशियल रिस्क एंड ऑडिट रिस्क को कवर करो. एंड द कंपनी हैज़ क्रेडिट इंश्योरेंस टू मैनेज द क्रेडिट रिस्क, जो अपने आप में अच्छी चीज़ है. एंड इंश्योरेंस कैन बी टेकन टू मिटिगेट द ऑपरेशनल रिस्क ऑल्सो, लाइक फायर फॉर इंस्टेंस. डिपेंडिंग ऑन द कवरेज और लॉसेस को देखते हुए कंपनी उस इंश्योरेंस को कवर कर सकती है, ले सकती है. विद अदर काइंड ऑफ रिस्क दैट द कंपनी कैन फेस, बिकॉज जिस नेचर में कंपनी काम कर रही है, दैट कैन बी टेरर अटैक, नेचुरल डिजास्टर, कैश ट्रांजिट इंश्योरेंस या फिडिलिटी इंश्योरेंस भी हो सकता है. सम ऑफ द ऑफ कोटेड एग्जाम्पल्स दिया है. फिर हम ये भी लिख सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट, क्योंकि आप कोल माइनिंग की तरफ की बात कर रहे हो या आयरन और माइनिंग की तरफ की बात कर रहे हो, तो सेफ्टी ऑफ द वर्कर्स कैन बिकम अ रियल थ्रेट and that has to be treated with the proper management. The reason is that the workers जो companies में काम करते हैं, they are engaging in the manufacturing process जो उनकी health को jeopardize कर सकता है, उनके organization को affect कर सकता है. Okay? और फिर workers को affect होगा तो political risk को बोल नहीं सकते, it cannot be mitigated. The only way to mitigate a political risk is good relations with those of the parties. Okay? तो इसी तरह आप political risk को mitigate कर सकते हो. And it seems from the question itself that the management is doing ethical business, जो अपने अपने गवर्नेंस रिस्क को तो कवर करता ही है. जब मैं रिस्क ट्रांसफ़र की बात करता हूँ तो किस तरीके से जो रिस्क मैं एब्जॉर्ब नहीं कर सकता उसको ट्रांसफ़र करने की बात करता हूँ. सो रिड्यूसिंग द रिस्क लाइकलीहुड, इम्पैक्टिंग ऑन द ट्रांसफर, अदरवाइज शेयरिंग द पोर्शन ऑफ द रिस्क. कॉमन टेक्निक्स विच कैन बी इन्वॉल्व is purchasing insurance cover, outsourcing activities, engaging in hedging. एंड लास्टली हम बात कर सकते हैं रिस्क एक्सेप्टेंस की, कौन से रिस्क को आप एक्सेप्ट कर सकते हो. सो नो एक्शन इज टेकन टू इफेक्ट द रिस्क लाइकलीहुड और इम्पैक्ट. सो दिस इज मेनली द केस वेयर द रिस्क implications are lower and the company's risk appetite is high.
So ABC has to see which potential risk it has to concentrate and focus on. So as you can see आंसर काफ़ी बड़ा सारा स्ट्रक्चर किया है, काफ़ी बड़ा सारा मैंने अपनी तरफ से जो जो हो सकता था लिख लिख के स्ट्रक्चर किया गया है. ओके, नो डाउट एक क्वेश्चन पुराने क्वेश्चन में से थोड़ा स्ट्रक्चर करके ये पूरा क्वेश्चन बनाया गया था. तो इट इज़ अ मॉडिफाइड क्वेश्चन फ्रॉम वेरी ओल्ड प्रीवियस एग्जामिनेशन एंड सुटेबली एडजस्टेड. बट यहाँ पे स्टूडेंट्स का रिएक्शन मेरे को देख के आज भी वही लगता है जो पहले कभी था, क्या लिखे. ठीक है, सो देखो आंसर्स लिखने के लिए आपके ही नोट्स में से दिए गए पॉइंट्स को ही उठा के आंसर बनाया गया, कोई एक्स्ट्रा नहीं था. बस आपको समझना है कि क्या कहाँ पे लिखना है और कैसे आपको लिखना है. ठीक है, क्लियर, फाइन. क्वेश्चन 2A जो था वो आया था, इतनी सी बात थी कि फॉरेन पब्लिक ऑफिशियल एज पर ICAI से एंटी ब्राइबरी के हिसाब से क्या होता है एंड ब्राइबरी क्या डेफिनेशन है, बस इतनी सी बात पूछी गई थी. सो दीज वर द टू थिंग्स दैट यू हैव टू राइट. सो फॉरेन पब्लिक ऑफिशियल्स आपको लास्ट चैप्टर्स आई बिलीव 17 चैप्टर में ही था. सो फॉरेन पब्लिक ऑफिशियल मीन्स पर्सन होल्डिंग लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस वेदर अपॉइंटेड और इलेक्टेड और परमानेंट. इसके बारे में ये बोलूँगा कि डेफिनेशंस में हमारे स्टूडेंट आज भी, पहले भी और उसके बाद भी शायद से वीक थे, वीक हैं, वीक रहेंगे. मतलब अपनी मर्जी के डेफिनेशंस बना लेंगे, एग्जैक्ट डेफिनेशंस लिखने में वीक रहेंगे. ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. सुटेबल मार्क्स विल बी गिवन टू ऑल द स्टूडेंट्स जिसने भी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया. जैसे फॉरेन ऑफिशियल्स के अंदर ये बताने की पब्लिक ऑफिशियल्स में ज़रूरत थी कि लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटिव जुडिशियल ऑफिस को कवर करते हैं एंड यहाँ पर पब्लिक फंक्शन जो परफॉर्म करता है उसके बारे में बात है. ब्राइबरी का मतलब होता है एनी काइंड ऑफ ग्रेटिफिकेशन जो हम लोग लेते हैं जो इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, कमर्शियल एक्टिविटीज से रिलेशन में हो सकती है, जिसे अनड्यू एडवांटेज लेने की कोशिश करते हैं. दैट इज द नेचर ऑफ ब्राइबरी. ठीक है, तो फाइन, इतना भी आंसर लिखोगे, डोंट वरी, मार्क्स दिए जाएंगे, मार्क्स काटे नहीं जा रहे. तो मार्क्स दिए थे स्टूडेंट्स को एंड दे वर हैप्पी. ओवरऑल पेपर का बोलूँगा सिनेरियो तो काफ़ी अच्छा था एक्सेप्ट फॉर द क्वेश्चन 1. क्वेश्चन 1 में थोड़े स्टूडेंट्स डर गए थे, जो उनके आंसर से मालूम पड़ रहा है कि 20 मार्क का क्वेश्चन था, किसी ने तो 2 साइड में कंप्लीट कर डाला. बोले लिखे क्या समझ में नहीं आ रहा. कुछ स्टूडेंट्स, अरे आई वुड नॉट से कुछ स्टूडेंट्स, कई स्टूडेंट्स ऐसे थे काफ़ी कुछ लिख के आए, काफ़ी कुछ समझा के, अलग अलग रिस्क के हिसाब से, वो भी अच्छा था. आई एक्चुअली अप्रिशिएटेड देयर एफर्ट एंड मार्क्स उसमें भी दिए जाएंगे. ठीक है, सो ऐसा नहीं कि जो इंस्टीट्यूट का मॉडल आंसर है वैसे ही लिखना चाहिए तो वैसे ही मार्क्स मिलेंगे. नो, मार्क्स कैन बी सुटेबली गिवन फॉर अदर साइड ऑल्सो. Now, what are the requirements of business responsibility report framework? जिसको पॉपुलरली आप, ये वाला क्वेश्चन में बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट फ्रेमवर्क की बात उठी है, तो जिसको हम लोग पॉपुलरली BRR रिक्वायरमेंट्स बोलते हैं. बराबर, क्लियर. सो इसके क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, इसमें क्या क्या चीज़ें कवर करनी थी. स्टूडेंट्स का आंसर वेरी सेटिस्फैक्ट्री, अच्छा लगा देख के कि स्टूडेंट्स को ये टॉपिक पता था. तो यहाँ पे SEBI हैज़ टू मैंडेट बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट, लिस्टेड एंटिटीज़ को एप्लीकेबल होगी एंड BRR टॉप 500 लिस्टेड एंटिटीज़ को कंप्लाई करनी पड़ती है एज पर रेगुलेशन 34 सब रेगुलेशन 2 क्लॉज F के हिसाब से. ना बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट एक तरह का डिस्क्लोजर है ऑफ द रिस्पॉन्सिबल बिजनेस प्रैक्टिसेस. फिर आंसर में आप लिख सकते थे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट्स में कवर किए जा सकते हैं. जैसे SEBI ने एक बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट का एक फॉर्मेट दे रखा है जो हर लिस्टेड एंटिटी को कंप्लाई करना पड़ेगा एंड उसके अंदर स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट्स हैं, स्टैंडर्डाइज स्ट्रक्चर्स हैं एंड बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट इस तरीके से डिज़ाइन की गई है वो कंपनी के न सिर्फ फाइनेंशियल डेटा बट परफॉर्मेंस एंड अदर इन्फॉर्मेशन जैसे सोशल, इकोनॉमिक और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन को भी गैदर कर सके. क्लियर. उसके साथ साथ आप आंसर में ये भी डिस्कस कर सकते थे कि बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट का मेन यानी कोर प्रिंसिपल ये रहता है कि ये जानना कि कंपनी सस्टेन करती है कि नहीं फ्यूचर के हिसाब से. ठीक है, बाकी फिर उसके जो सेक्शंस थे फ्रेमवर्क के अंदर वो आपको आंसर में लिखने ही थे, तो वो काफ़ी लोगों ने लिखा है. जैसे सेक्शन ए रहता है जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्री, प्रोडक्ट. सेक्शन बी में फाइनेंशियल डिटेल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन देना. तो सेक्शन सी में BR इनिशिएटिव्स क्या क्या हुए हैं कैसे, एंड सेक्शन सी में अदर डिटेल्स सप्लाई चेन, सब्सिडरीज, BR इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर्स और ऐसे सारे प्रिंसिपल्स डिस्क्राइब करने थे. ठीक है, जो काफ़ी हद तक सेटिस्फैक्ट्री थे. अब क्वेश्चन नंबर 3 में जो बात आई थी, लेट्स अंडरस्टैंड दैट. क्वेश्चन नंबर 3A था, दैट इज इंटरनल कंट्रोल कैन हेल्प एंटिटी टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव एंड इट इज नॉट अ पिनेशिया. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था. इंटरनल कंट्रोल कैन हेल्प एंटिटी टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव बट इट्स नॉट अ पिनेशिया. पिनेशिया का मतलब होता है रामबाण, अचूक. इंटरनल कंट्रोल कंपनी के लिए बहुत अच्छा ज़रूर है, पर वो अपने आप में अचूक नहीं है, वो अपने में एक पिनेशिया नहीं है.
ओके इस तरीके से आप बोल सकते हो. तो इंटरनल कंट्रोल इज वेरी गुड फॉर द कंपनी, बट इट्स नॉट अ पिनेशिया, इट्स नॉट अ रामबान काइंड ऑफ थिंग दैट ये कभी मिस नहीं होगा, समथिंग लाइक दैट. तो ये आंसर आप स्टेटमेंट हम आंसर में लिख सकते हैं. येस, इट इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट. इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल के मेरिट्स और लिमिटेशंस है. हमें रादर ये बताना था कि इंटरनल कंट्रोल के क्या लिमिटेशंस हैं जिसके वजह से इंटरनल कंट्रोल अपने आप में एक कहीं ना कहीं फेलियर्स में आ जाता है. तो जो चीज़ें यहाँ पे अफेक्ट कर सकती है, तो जैसे सम ऑफ द लिमिटेशंस आर: इंटरनल कंट्रोल कैन नॉट चेंज इनहेरेंटली पुअर मैनेजर, इंटरनल कंट्रोल कैन नॉट इंश्योर or success or even survival of the organizations, programs, competitors' actions. Okay, internal control से आप ये कैसे कंट्रोल करोगे कि कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है वो सब. एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, नो मैटर हाउ वेल or how conceived and operated, can only provide a reasonable but not absolute assurance to the management of the board that entity अपना objective achieve कर रही है कि नहीं. And the likelihood of achievement is affected by the limitations in all internal system. And control can be circumvented by the collusion of two or more people. मतलब दो या ज़्यादा जन कंट्रोल को मॉनिटर कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं. ये सब भी चीज़ें आप लिख सकते हो एग्जाम के हिसाब से. क्लियर. एंड इसके अंदर आप ये भी डाल सकते हो द कंट्रोल्स कैन बी सर्कमवेंटेड बाय द collusion of two or more people के साथ साथ. that another limiting factor is that the design of the internal control, they reflect the fact that there are resources constraints and the benefits of the control must be given to the cost level, because कई organization control का cost bear ही नहीं करना चाहती. So thus internal control can help an entity to achieve the objective, but it's not a panacea. Clear? ठीक है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो टेस्ट में था और काफ़ी स्टूडेंट्स ने यहाँ पे अच्छा खासा ब्लंडर किया था. ओके, कुछ ने अच्छा लिखा, कुछ ने ब्लंडर इसलिए किया था क्योंकि देखो यहाँ पे पूछा गया था नेशनल गाइडलाइंस ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस कंडक्ट हैज 9 थीमेटिक पिलर्स. और स्टूडेंट्स का ब्लंडर इस तरह से आया था दैट 9 थीमेटिक पिलर्स कौन से उनको या तो पता नहीं या क्वेश्चन समझा नहीं. तो इस वजह से वो लोग कुछ भी 9 पॉइंट्स लिख के आ गए बस ये समझाने के लिए कि नेशनल गवर्नमेंट की कुछ तो गाइडलाइंस होगी. किसी किसी ने तो शॉर्ट नोट लिखा था. ठीक है, चलो अपनी तरफ से लिखा जो भी कुछ समझाने की कोशिश की, पर जो पिलर्स थे वो मिस कर गए. ठीक है. बाकी ऊपर वाले इंटरनल कंट्रोल में जैसे मैंने समझाया था कि इंटरनल कंट्रोल्स होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन उसके अंदर अपने अपने लिमिटेशंस थे. वो क्वेश्चंस काफ़ी स्टूडेंट्स ने अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया था. ये वाला पार्ट जो है नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कहीं ना कहीं मिस कर गए थे. ठीक है, चलो इसका आंसर मॉडल मैंने सोचा ऐसे बना सकते हैं कि इन मार्च 2019 मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स they have revised the national voluntary guidelines on social, economic, environmental and economic responsibility. They have released the national guidelines on responsibility business conduct and these guidelines urge to actualize the principles. ठीक है, in letter and spirit. फिर आंसर में हम बाकी की चीज़ें ये लिख सकते हैं कि 9 थीमेटिक प्रिंसिपल्स में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है. अब जब 9 प्रिंसिपल्स की बात है तो एग्जाम में ध्यान रखना 9 के 9 ही होने चाहिए. इट शुड नॉट बी 7 and 8. Okay, so businesses should conduct and govern themselves in integrity in the manner of ethical, transparent accountability. Business should provide good services in the manner that's sustainable and safe. Business should respect and promote the well-being of the employees. Business should respect the interests of be responsive to the stakeholders. Business should respect and promote human rights. Business should respect and make efforts to protect the environment. With business when engaging and influencing public and regulatory policy should do in the manner that is responsible. Business when engaging in influencing public and regulatory should do in the manner responsible to be transparent. And business should engage and provide value to the person who is responsible. Okay, and business should engage and provide value to the consumers responsible. तो ये सारे प्रिंसिपल्स आप ऐड कर सकते थे. गलती से मेरे से एक और ऐड हो गया था, बट ठीक है, देयर हैज़ टू बी 9 प्रिंसिपल्स. ठीक है, तो ये चीज़ों का ध्यान रखना. आंसर लिखते समय 9 प्रिंसिपल्स हैं. 9 प्रिंसिपल एग्जाम में ध्यान रखना. इफ़ दिस क्वेश्चन कम्स तो दिस टाइम डोंट मिस इट. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने देखा था एग्जामिनेशन में और स्टूडेंट्स ने काफ़ी हद तक लिखा था, अच्छे से लिखा था, वो था राइट अ शॉर्ट नोट ऑन यूके ब्राइबरी एक्ट. ठीक है. हाँ, ये बात था कि कुछ स्टूडेंट्स से लगता है मेरे को पिछले पुराने वाले स्कैनर्स वगैरह रेफ़र किए होंगे, उसके अंदर यूके ब्राइबरी के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें लिखी थी, वो भी छाप के आए थे. वैसे अपने नए वाले मॉड्यूल में दिसंबर 2020 के लिए जो एप्लीकेबल है उसमें इतना सारा नहीं है, तो उसमें जितना इम्पोर्टेंट पार्ट था उतना ही लिखना था. ठीक है, चलो जैसे भी आपने आंसर लिखा अच्छी बात है, आपने आंसर लिखा. तो यूके ब्राइबरी एक्ट 2010 is an act of the Parliament of United Kingdoms introduced in the Parliament in the Queen's Speech 2009.
After several decades of reports and draft bills, the Act received the royal assent on 8th of April 2010 following the cross-party support, and initially scheduled to enter into force from April 2010. This was changed on 1st of July 2011. Okay, एंड फिर उसके बारे में हम लिख सकते हैं कि एक्ट क्या क्या पर्पस था. तो वैसे आंसर फ्रेम किया, द एक्ट रिपील्स ऑल द प्रीवियस स्टैट्यूटरी कॉमन एंड लॉज इन रिलेशन टू द ब्राइबरी इंस्टेड ऑफ रिप्लेसिंग देम विद द क्राइम्स ऑफ द ब्राइबरी बीइंग ब्राइब फॉर द फॉरेन पब्लिक ऑफिशियल्स, फेलियर ऑफ कमर्शियल ऑर्गन. मतलब अलग अलग नेचर के जो ब्राइबरी नेचर्स डिस्क्राइब थे, ये एक्ट ने सबको एक जगह क्लब करके बाकी सब हटा दिए. एंड द पेनल्टी फॉर कमिटिंग द क्राइम आर मैक्सिमम 10 years imprisonment along with unlimited fine. And that was a big change. And the potential for confiscation of the property under the Proceeds of Crime Act, as well as disqualification of the directors of the company directors disqualification act. तो ब्रिटेन में क्या रहता है, हर एक प्रोविजन के हिसाब से अपने अपने एक्ट रहते हैं. तो उसके हिसाब से उन्होंने एंटी ब्राइबरी एक्ट को दूसरे एक्ट से जोड़ने की कोशिश भी की है. एंड द एक्ट हैज़ नियर यूनिवर्सल जुरिस्डिक्शन. मतलब एंटी ब्राइबरी एक्ट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू ब्रिटेन, इट्स स्प्रेड ओवर मेनी अदर एरियाज ऑल्सो. फॉरेन एरियाज में भी एक कवर होता है. इनफैक्ट मेरे कई क्लाइंट्स के लिए हमको ये साइन करवा के ब्रिटेन भिजवाना भी पड़ता है. सो दैट इज़ देयर. एक FCPA होता है कि इसके कंप्लायंस, आपके बैंकों में FCPA का आपने देखा भी होगा. एंड द एक्ट हैज़ यूनिवर्सल जुरिस्डिक्शन अलाउिंग फॉर प्रोसिक्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल और कंपनी विद लिंक्स टू यूनाइटेड किंगडम रिगार्डलेस ऑफ वेयर द क्राइम हैज़ अकर्ड. And described as the toughest anti-corruption legislation in the world, the concerns have been raised that the act just criminalizes the behavior that is acceptable in the global market, but it puts British business at the competitive disadvantage. So इस तरीके से ब्रिटिश के इस एक्ट के बारे में हम शॉर्ट नोट लिख पाए थे. ठीक है, आपने भी कई जनों ने लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है, तो आई एम हैप्पी अबाउट दैट. ठीक है, अब मैं दूसरी बात देख लूँ, फाइनेंशियल ये वाला क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन ऐसा था कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मॉडल इज लाइक लुकिंग इनटू द रियर व्यू when in fact the road ahead is very turbulent and there are huge impacts on the economy, both social and societal. Explain the statement highlighting the expectations of the investors. ये questions कई students ने या तो misunderstood किया और जिसने understood किया उसने अच्छे से लिखा. तो it was like this, या तो समझा या समझा ही नहीं. देखो, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होता है वो पिछले चीज़ों को देख के करते हैं, जैसे पास्ट रिकॉर्ड्स, पास्ट चीज़ें जो इवेंट हो चुका है, इसलिए उसको बोलते हैं लुकिंग इनटू द रियर व्यू. हम पीछे की तरफ देख रहे हैं. फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से हम प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ बातचीत नहीं करते. एज अ इन्वेस्टर हम लोग हमेशा फ्यूचर की तरफ सोचने की बात करते हैं. इसलिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक तरह का रेशियो एनालिसिस के लिए हेल्प कर सकता है, बट दैट इज डिपेंडेंट ऑन अ डेड डेटा, नॉट अ लाइव डेटा. इस बारे में इस आंसर के अंदर रिफ्लेक्शन डालना था. ठीक है, सो यहाँ पे हम आंसर स्टार्ट करके ऐसे ही लिख सकते हैं दैट कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग इज एन एसेंशियल मीन्स. Corporate reporting is an essential means, okay, by which the companies communicate with the investors as a part of the accountability stewardship obligations. The current financial reporting is a part. So, the current financial reporting model was developed in 1930 for an industrial world, and in general, the model provides for a backward-looking review for the performance and does not provide for enough relevant information. The financial reporting model, like looking into the rear window, when in fact the road is ahead, is a very turbulent and there are huge impacts on the company in both societal and environmental level. Okay, ये पहले हमने समझाया कि ये सारे impact हो सकते हैं. फिर आगे के पॉइंट में हम लोग ये समझा सकते हैं कि it is not necessarily the volume of the information, but it is the lack of comprehensive story, which is where the improvement in the corporate reporting is needed. फिर आप expectations of investors, that is business model and strategy expected है, intangible factors and sustainability expected है, impacts and performance that affect the company expected है, key aspects है, internal controls है, human rights है, diversities है, key financial issues. मतलब ये these are the expectations of the investors. ठीक है, these are the expectations of the investors. तो यहाँ पे वो आता है. ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन था अगेन एक थोड़ा सा केस बेस्ड सिनेरियो था, सिचुएशन एनालिसिस जैसा. तो काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ पे नो डाउट, बट आई एम हैप्पी ये वाला तो एटलीस्ट अच्छे से अटैम्प्ट किया था. तो ये वाला क्वेश्चन क्या था और कैसे नेचर में उन्होंने अटैम्प्ट किया वो मैं समझाता हूँ. ठीक है, नाउ Apex Pharmaceutical Limited is a well-reputed multinational company dealing in manufacturing and marketing of life-saving drugs formulations. क्वेश्चन में लिखा है
And company's research and development department is actively engaged in development and formulations of new drugs in general and life-saving drugs in particular. ठीक है. And while experimenting with the chemical module, R&D department sees the possibility that a molecule can be developed into a drug that may prove very helpful for the treatment of the rare, painful and life-threatening genetic disease, for which no effective drug is available in the market at present, but which affects only one child in a million. Oh, मतलब क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि रिसर्च टीम ने एक ऐसा ड्रग्स ढूंढ के निकाली, एक ऐसी चीज़ ढूंढ के निकाली जो उस बीमारी को ठीक कर सकती है जिसके बारे में मार्केट में कोई ड्रग्स नहीं है, लेकिन ये बीमारी भी 1 मिलियन में से एक बच्चे को होती है. सो हाउएवर द डेवलपमेंट ऑफ द ड्रग विल रिक्वायर ह्यूज इन्वेस्टमेंट ऑफ द इन्वेस्टर्स मनी डिस्पाइट द ड्रग नॉट हैव अ सेलेबिलिटी वैल्यू, बिकॉज सबको ये यूजफुल नहीं होगी. तो अब सवाल होता है द R&D डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी ब्रिंग दिस नोटिस टू मिस्टर राम हु इज अ CEO. Taking the above facts into consideration, what dilemma is Mr. Ram facing? And as a CEO in the place of Mr. Ram, how would you have acted in this situation? So, ये था ethical dilemma का questions. Okay, I believe now you're getting the hang कि किस तरह examiner आपसे इंट्रीगेट करते हुए और चीज़ें जानने की कोशिश कर सकता है और कुछ ना कुछ कर सकता है. सो आपको एक तरह से बराबर से तैयारी रखनी है सो दैट एग्जामिनेशन में यू डोंट फेस द ट्रबल्स. ओके, चलो अभी ये एथिकल डायलेमा का इस क्वेश्चन को हैंडल कैसे किया जाएगा वो समझते हैं. ठीक है. और हाँ, बाय द वे काफ़ी लोग पूछ रहे थे सर पेपर कैसे मिलेंगे, तो पेपर आप provinccs@gmail.com पे आप मेल भेज दीजिए, पेपर आपको भिजवा दीजिए. इट मे टेक अ डे और 2, समटाइम्स कभी कभी डिले और लैग हो जाता है, बट डोंट वरी, पेपर्स आपको भेज दिए जाएंगे. सो इफ़ यू नीड द पेपर्स, provinccs जो भी ऑनलाइन अपने स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो provinccs जीमेल पे आप ईमेल भेज दीजिए. डोंट वरी, वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग, तो आपको पेपर्स भेज दिए जाएंगे. ठीक है, क्लियर, फाइन. वो तो बताना था तो बता ही दिया, बाकी डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा. तो यहाँ पे एथिकल डायलेमा क्या है और कैसे हैंडल करते हैं. देखो, इसका आंसर ऐसा था कि डायलेमा इज अ सिचुएशन दैट रिक्वायर्स, हम पहले डायलेमा के बारे में बताएंगे और फिर ये क्वेश्चन एक्चुअली एथिकल डायलेमा का है. बिकॉज एथिक्स के हिसाब से एक बच्चे को बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर मैं उतने लोगों के लिए प्रोडक्ट्स बनाऊं जो लाइफ के लिए दैट इज़ मेरे को जिसमें सेलेबिलिटी मिलती है, प्रॉफिटेबिलिटी मिलती है. तो राइट एंड रॉन्ग के बीच में डिसाइड करना. सो आप पहले डायलेमा की सिचुएशन डिस्क्राइब कर सकते हो एग्जाम में कि डायलेमा इज अ सिचुएशन दैट रिक्वायर्स चॉइस between the options that are equally unfavorable. By the definition, ethical dilemma involves to choose between two more morally acceptable actions. One can be a choice preventing the selecting of the other, or you need to choose between two unacceptable options. So dilemma could be between, see, a dilemma is between right and wrong situations. Okay, but that it becomes easier, then you have to make a right decision and avoid the wrong decision. But the complexity of ethical dilemma involves a decision when a right decision is coming into picture, keeping in the fact that it can be said that Ram is certainly facing a dilemma, and Ram is required to choose between the rights, that is whether he should be developing a drug for a rare, painful, life-threatening disease which affects only 1 in a million child, spending huge investors' money. As one can see from this question, इससे यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि ये ऐसे डायलेमा बहुत कभी कभी ऑर्गेनाइजेशंस में आते ही हैं. सो एज वन कैन सी फ्रॉम दिस क्वेश्चन, बोथ पॉजिटिव एंड एथिकल चॉइसेस आर कमिंग टू पिक्चर. As socially responsible person, he has to think in terms of eliminating serious disease. But at the same time, he has to be careful because investor का पैसा है, so they need returns on investments. So he has to be careful. So this becomes a classic case of an ethical dilemma. Okay? अब आते हैं इसके अंदर, इफ़ आई एम एज अ CEO तो मैं क्या करना प्रेफर करता. ओके, बिकॉज दैट्स व्हाट दे हैव आस्क्ड. सो इफ इन प्लेस ऑफ राम आई एम एक्टिंग एज अ CEO, तो पहले ये चीज़ें आती, व्हाट इज द प्रॉब्लम, क्लियरली लिख के डिफाइनिंग द गोल, देन गेटिंग द कलेक्शन ऑफ द स्टैटिस्टिकल डेटा अक्रॉस द ग्लोब दैट प्रीवियस हिस्ट्री में ऐसे टाइप ऑफ जेनेटिक डिजीज थे, प्रोबेबल कॉज ऑफ स्प्रेडिंग इन टू द कमिंग टाइम क्या हो सकते हैं, सर्चिंग एंड डेवलपिंग ऑल पॉसिबल ऑप्शंस अवेलेबल कि अगर मैं ये नहीं बनाऊंगा तो क्या कोई और कुछ और कर सकता है. इवेल्युएटिंग ईच अवेलेबल ऑप्शन केयरफुली इन टर्म्स ऑफ प्रोज एंड कॉन्स. फिर देन सीनियर मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनके सामने डालने का, बिकॉज वी हैव टू टेक इन कॉन्फिडेंस. देन कंपेयरिंग द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द ऑप्शन एंड चूजिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव और कीपिंग इन द रिसोर्सेज इन द माइंड. सो ये चीज़ें आप लोग यहाँ पे अडॉप्ट कर सकते हो. ओके, and certainly properly implementing the decision taking into view of the
6A, write a short note on United Nations Global Compact Principles. And answer, बस आप लोग ये हंसते चेहरे देखते ही मेरे को समझ में आ गया सर लिखा है. ठीक है, डेफिनेटली आप लोगों ने आंसर अच्छा लिखा था, ये बहुत अच्छा लगा था. एंड ओवरऑल मैं बोल सकता हूँ पेपर वॉज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री. और फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा फंबल अप आप हो गए थे, लेकिन पेपर वॉज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री. अच्छा लगा ये सब चीज़ें कि आप स्टेबल हो, आप जानते हो क्या करना है, कैसे करना है, आपको ये समझ में आता है. सो दीज थिंग्स वर गुड इनफ, दिस थिंग वर रियली गुड इनफ टू सी फ्रॉम योर एंड. ठीक है, सो ओवरऑल पेपर वॉज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री. ठीक है, चलो इसका आंसर सिंपली इतना ही लिखना था. यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट इज अ स्ट्रैटेजिक पॉलिसी इनिशिएटिव फॉर द बिजनेस that are committed to aligning the operation strategies with 10 universally accepted principles. Because principles पूछे गए, and UN Global Compact 10 principles, they are derived from Universal Declaration of Human Rights, International Labour Organization से, Rio Declaration से. ये सब चीज़ें आप आंसर में डाल सकते हो if you remember them. ओके, अब याद रखें, देखो अगर आप 10 प्रिंसिपल्स लिख रहे हो तो प्लीज़ 10 के 10 ही होने चाहिए. इफ़ यू आर राइटिंग 10 principles, so please make sure that they are 10 principles. It should not be 9, it should not be 8, or the principles are करके ऐसा लिखना. Don't write 10 principles if you are writing 8 or 9. और एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व किया, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे प्रिंसिपल नंबर 2 है ना, उसको दूसरे वर्ड्स में प्रिंसिपल नंबर 8 में घुसा देते हैं. फिर प्रिंसिपल नंबर 3 है ना, दूसरे वर्ड्स में प्रिंसिपल नंबर 9 में डाल देते हैं. तो सेम प्रिंसिपल लिख रहे हैं. तो दे आर एक्टिंग स्मार्ट, बट देखो पेपर चेकर को इतना तो समझ में आता है कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो. आफ्टर हम भी स्टूडेंट्स रह चुके हैं. तो ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना. तो फाइन, प्रिंसिपल नंबर 1, बिजनेस शुड सपोर्ट एंड रिस्पेक्ट द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरनेशनल principle लिख सकते हो. Principle 2 was make sure that they are not complicit in human rights abuse. Principle 3 में business should uphold the freedom of association. Principle 4 में the elimination of forms of forced compulsory resources. Principle 5 में effective abolition of child labor. Principle 6 was elimination of discrimination in employment. Principle 7 was business should support precautionary approach on environmental challenges. Principle 8 जहाँ तक बात करूँ, it was undertake the initiatives to protect and promote greater environmental responsibilities. Principle 9 was to encourage the development and diffusion of environmental friendly technology. And Principle 10 was business should work out against the corruption in all forms, including extortion and bribery. Clear? Fine. अब क्वेश्चन नंबर जो 6 आया था, ओके, क्वेश्चन नंबर 6 भी सिंपल ही था. QTR Limited is proposing a listing on the stock exchange, and before such listing the company has to decide इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म के बारे में था. यू हैव टू सजेस्ट द पॉइंट्स टू बी केप्ट व्हाइल एस्टैब्लिशिंग इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म. सो इंटरनल कंट्रोल के चैप्टर से था, एंड उसके अंदर से आया हुआ एक क्वेश्चन. तो एज यू कैन सी द रिमेनिंग पीछे के चैप्टर्स का परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक अच्छा ही रहा है, एंड उसकी इंपॉर्टेंस भी बहुत है. जैसे आप जानते हो, रिस्क मैनेजमेंट 20 मार्क का है, एथिक्स वगैरह भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स है. तो इन चीज़ों का प्लीज़ एग्जाम में ध्यान रखना. ओके, चलो इसका आंसर क्या होगा. तो इसका आंसर ऐसे था, इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म फॉलोइंग पॉइंट्स हैज टू बी केप्ट इन पॉइंट. ठीक है, दैट इज टू आइडेंटिफाई द की एरियाज वेयर इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म हैज टू बी एस्टैब्लिश. एवरी वर्क फ्लो should be documented, and it is not complete if another person has not checked it. The other person's role should start with when the first mentioned rule has come to an end. Establish a surprise check mechanisms, reporting of non-adherence of key complex areas, review the mechanisms and establish visual mechanisms. ठीक है, सो इस तरीके से ओवरऑल पेपर में बोलो अच्छा था, स्टूडेंट्स प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हैं, एंड आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड. होप एग्जाम में आप लोग इस पेपर में बहुत अच्छे से कर पाओ, बिकॉज अब अपनी गवर्नेंस की सीरीज़ खत्म होगी. आगे पेपर्स आते रहेंगे और हम लोग पुटअप करते रहेंगे. तो इसका यहाँ पे सीरीज़ खत्म हो गई. जिसने भी पेपर्स लिए हैं, अच्छी बातें, नहीं लिए हैं, लेके एक बार अपने आप को टेस्ट करने की कोशिश करो. आंसर्स आप चेक कर सकते हो कि कैसे आप परफॉर्म कर रहे हो. मैंने क्लास के सारे स्टूडेंट्स को, प्लस काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो दूसरी जगह से पेपर भी दे रहे हैं, उन लोगों को भी भेजा है, एंड दे आर डूइंग देयर बेस्ट. तो अच्छा लग रहा है, एफर्ट्स डाल रहे हैं, और एवरीवन इज़ डूइंग द बेस्ट. ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम. चलो बाय बाय.